So good morning all of you. And we are learning chapter number 14. Today's date is 20. Today we are going to learn the construction of angle. Yes, madam. Pay your attention over here first of all. No need to write anything. We are going to learn how to construct an angle. Yesterday we had learned about the construction of perpendicular bisector of लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम कल पढ़े. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ एन एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिमाइंड व्हाट इज एन एंगल. एंगल कैन बी फॉर्म बाय टू रेज. एंगल क्या होता है? इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज. हम दो रे को मिला के एक एंगल बना सकते हैं. It has one origin and it has two arms. Angle has two arms. Okay. Angle can be drawn in both the ways. Means here I have taken the ray from left to right. Ray shows us that it has one end point and another side it is extended endlessly, infinitely. Okay, still many students are doing their work, not paying attention here. And we can draw the ray in this way also. And angle in this way also. This is also an angle. Here the origin will come here, A and B. The ray end point of the ray I have taken over here on right hand side. And here in this figure it is taken on left hand side. Means ray can be start from right or left any side, and that's why due to that reason we can measure any angle in both the ways, and that's why on the protractor the digits from 0 to 180 is given from right to left and left to right both the sides. Because if we want to draw the angle in this form, so we can adjust its center over here and the arrow comes here in this side. So we have to consider 0 of right side and we can draw the angle. Same way, over here in this way, if I want to draw the angle, I have to put the protractor, consider the 0 of left side because arrow is at left side, and then we can use the digit to draw the angle. So, angle formation using protractor we had already learned in our past lectures. मैंने ही पढ़ाया है, बराबर? हम लोग पढ़ के आए basic geometrical shapes. So, it is already clear. So, just now, today we are going to understand how to draw the angle without using protractor. Protractor के बिना angle कैसे draw किया जाता है? And for that, we will use two instruments which are ruler and compasses. Okay, so here in your textbook it starts likewise. The first construction which is given on page number 286. 286 से ये एंगल का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है. फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज गिवन यूजिंग प्रोट्रैक्टर. वहाँ पे 40 डिग्री का एंगल बनाया गया है बट यूजिंग प्रोट्रैक्टर. और फॉर दैट आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि यू पीपल कैन डू इट इजीली. सो आई स्किप इट. वो हमें अभी नहीं करना है. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. राइट डाउन द हेडिंग कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजरमेंट. चलो, राइट द हेडिंग इन योर नोटबुक फ्रॉम पेज नंबर 287. Constructing a copy of angle with unknown measure. एंगल के हेडिंग में पहले ये लिखो कंस्ट्रक्टिंग अ
copy of an angle. Copy of an angle of unknown measure. And everybody has to pay their attention to me. बिकॉज आपको है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट वो एंटरटेनमेंट जो है ना वो आपको एंटरटेनमेंट की बेस पे नहीं लेना है. यू आर लर्निंग कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैथ्स, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ स्टैंडर्ड 10. और the students those who wants to make their career in engineering field, for them this is very important chapter. So whenever you grown up in the standard 8, for the construction in your textbook also it will be asked, write down the steps. How you construct the figure, write down the steps, which is not asked in your class 6 textbook. Class 6 में वो नहीं पूछा गया है, but in future whenever you grown up you have to write it down. तो स्टेप्स क्या होते हैं वो भी आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए. फॉर दैट नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, द स्टेप्स आर ऑलरेडी गिवन. अकॉर्डिंग टू दैट वन बाय वन हम स्टेप्स लेते चलेंगे एंड कंस्ट्रक्शन बनाएंगे. व्हाट इज वी आर लर्निंग दिस नाउ, कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजर. तो पहले हम क्या करेंगे, तो एक रैंडम एंगल ड्रॉ करो विदाउट मेजरमेंट. तो एंगल ड्रॉ कैसे करोगे, यूजिंग रूलर. रूलर का यूज करके आप क्या करो, ये एंगल ड्रॉ करो ना, आपके पेज के एक्सट्रीम लेफ्ट पे ड्रॉ करो, तो उसी के पास आप कॉपी बनाओगे तो आपको कंपैरिजन इजी रहेगा. ठीक है, पेज के लेफ्ट साइड, जितना लेफ्ट साइड हो सके उतना लेफ्ट साइड एक एंगल ड्रॉ करो. अननोन मेजर लेना है, इस तरह से मैं ले रही हूँ अननोन रैंडम. Got it? ये ऑलरेडी दिया गया है, इसको ए इंडिकेट किया है आपकी टेक्स्ट बुक में. इट इज गिवन एज ए. एंगल हो गया. चलो नाउ हमें क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है सेम. ओके, सो व्हाट टू डू फॉर दैट. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ दिया गया है कि टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट P. और यहाँ लाइन नहीं है, रे ड्रॉ किया गया है, तो हम एक अनदर रे ले ले. यहाँ पे एक रे ड्रॉ करो रूलर से, उस पे पॉइंट ले लो P. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. Done? Yes. No. चलो. Now keep the compass in your hand. कंपास जो है वो आपके हाथ में रखो. एंड ए को सेंटर बनाओ. सेंटर ए मीन शार्पनेज आपको यहाँ ए पे रखनी है. ओके, टेक अ रैंडम रेडियस. कोई भी रैंडम रेडियस लो एंड ड्रॉ एन आर्क. एक आर्क ड्रॉ कर दिया. नेम इट बी एंड सी. डन. इट इज गिवन इन पेज नंबर स्टेप 2 ऑन पेज नंबर 287. मैं ये क्यों दिखा रही हूँ कि टीचर की एब्सेंस में भी आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे कंस्ट्रक्शन किया. तो स्टेप्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ ऑन पेज नंबर 288 स्टेप 3 इज गिवन. यूज द सेम कंपास सेटिंग टू ड्रॉ एन आर्क विथ P as center, कटिंग L in Q. मींस व्हाट, ये सेम डिस्टेंस रखो. अगर कंपास डिस्टर्ब हो गया है तो वंस अगेन यू चेक इट्स मेजरमेंट. देन put the sharpenage on P. sharpenage कहाँ रखनी है, P पे. एंड पेंसिल एज जो है वो जहाँ पे आपने मेजरमेंट लिया उसको यहाँ कट करो. नेम दो Q. नेम इट Q.
सेम मेजरमेंट, ये रेडियस चेंज नहीं होनी चाहिए। ए से सी की जो रेडियस आपने ली वही रेडियस लेके पी से क्यू तक को आपको इंटरसेक्ट करना है। डन। स्टेप 4 क्या करना है, विद सेम यहाँ पे रख के आप ये आर्क बनाओ सेम रेडियस का। पी पे शार्पन एज रखो, क्यू पे पेंसिल रखो, एक आर्क बनाओ। Done? Yes. Now, put the sharpen edge on C and extend it up till B. B तक का extend कर, ठीक है? Now, put it on Q और यहाँ पे उसका आर्क बनाओ, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। Yes, ma'am. Got it? Yes. और join this intersection point with P. P के साथ join कर लो और इसे R दो। फिर कंफर्मेशन के लिए what shall we do? Use protractor. ये मेजर करो, सेंटर ओ पे ए पे रख के राइट साइड का 0 लेके मेजर करो, जो भी आता है वही यहाँ पे भी आना चाहिए। मैंने रैंडम ड्रॉ किया, फिर भी 3 डिग्री का डिफरेंस है। आपका नहीं आना चाहिए भाई, सेम आना चाहिए। Yes, ma'am. सेम आए सबके? Yes. 90. Whatever the angle you had taken, randomly आपने जो भी एंगल लिया था वही एंगल ये फिगर में भी आना चाहिए। So what we had done? I repeat the construction. चलो, pay your attention to me. What we had done? The random angle was given. Assume करो कि वो दे दिया था, ठीक है? Now, what we had done? First we had drawn one ray, taken one point P on it. This is the first step. Yes. Second step, by center A with the random radius we have drawn one arc which intersects these two arms on B and C. Got it? Yes. Then with the same radius we have taken one intersection point on these arms. Okay? Then we have taken a radius with the center C and B. And we have cut it from center Q to the arc which we have drawn. Then we have joined this intersection point with the origin. Clear? These are the steps. For what? To construct a copy of an angle of unknown measure. ठीक है? अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल BAC is equal to एंगल RPQ और एंगल CAB is equal to एंगल QPR. How could we write the angle? एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं वो समझो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? BAC RPQ। क्यों ऐसा क्या? ओरिजिन जो है एंगल का ऑलवेज इट कम्स एट द सेंटर। आप ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ ट्राइंगल, इट इज एन एंगल। गॉट इट? तो एंगल के जब आप डिनोट करते हो एट दैट टाइम यू शुड बी केयरफुल कि आपने जो नेम दिया है आइदर यू कैन राइट BAC, आइदर यू कैन राइट CAB, अनदर वे CAB एंड QBR। अंडरस्टूड? तो ट्राइंगल को आप कोई भी वर्टेक्स से शुरू करो, इट डजंट मैटर।
बट इन एंगल इट मैटर्स। एंगल में आप ओरिजिन से शुरू नहीं कर सकते, ओरिजिन आपको नेम से पता होना चाहिए। अभी ड्रॉ नहीं किया है और ऐसा दिया है तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही ए आएगा। गॉट इट? दोनों आर्म का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहीं पे ए आएगा, वहीं पे पी आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये गलती नहीं करना, नहीं तो ये गलती अगर फ्यूचर क्लास में करो तो डोंट टेल एनीबॉडी दैट नेहा मैम वाज आवर मैथ्स टीचर। किसी को ये बताना भी नहीं, क्योंकि आप लोग अटेंशन प्रॉपर दे नहीं रहे हो। अभी ये जो है हमारा चैप्टर चल रहा है वो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ ये सब पढ़ना भी जरूरी है, जहाँ पे आपका ध्यान कम है। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सही तरह से ध्यान देना। सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या लेते हैं हम? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। यस, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। और यहाँ पे हमें क्या करना है? हम yesterday we had learned about the bisector of a line segment. Yes. याद है ना सबको? Yes. ये एंगल का बाइसेक्टर ढूंढना है। तो वन, यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर उन्होंने दिया है, जो मैं नहीं कराने वाली, मैं स्किप कर रही हूँ। We are going to find out the bisector using compass and ruler. At the bottom of 288 page, this heading is given that construction with ruler and compasses. Yes. Write down these headings. Construction with ruler and compasses. Done? Yes. Yes. Then after, let us draw a random angle. Angle draw करो randomly. Center of the page लोगे, यहाँ पे चलेगा, doesn't matter. Draw two rays और उसका intersection point लो। आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही नेम में दे दूँ, A. Done? Yes. Now keep the compass in your hand. कंपास से क्या करना है? सेंटर ए को लो, मानी शार्पन एज यू हैव टू पुट ऑन ए। टेक द रैंडम रेडियस, कोई भी रैंडम रेडियस लो। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दीज आर्म यू ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क बनाओ इस तरह का, रैंडम रेडियस का, विच इंटरसेक्ट्स बोथ द आर्म्स। दोनों आर्म को वो इंटरसेक्ट करेगा, and name it your B and your C. हो गया? Yes. No. Yes. Yes. Then after, put the sharpen edge on B. Sharpen edge कहाँ रखनी है? B पे. Take the radius until C. C तक की रेडियस ले लो. Okay. Draw an arc in this way. Same, put the sharpen edge on C and with the same radius. यदि कंपास आपका लूज है तो रेडियस दूसरी बार भी मेजर करना जरूरी है. And then draw an arc in this way. Both the arcs will be intersect each other. Yes. And join it with the original. ये ओरिजिन जो है ना आपका, उसके साथ ज्वाइन करो। So now आपको क्या करना है? ये दोनों एंगल का मेजर सेम आया, ये दोनों का। ये x जो मैंने लिखा क्रॉस मार्क, that shows us that these
two angles are of equal measure. Yes, ma'am. कल जो मैंने दो पैरेलल लाइन सेगमेंट के लिए यूज की थी, वैसे यहाँ एंगल को इक्वल बताने के लिए ये सिंबल यूज होता है. Yes, ma'am. Got it? Yes. अभी मेजर करना है कंफर्मेशन के लिए, तो आपको प्रोट्रैक्टर का यूज करके यहाँ पे पहले रखो, फिर ये राइट साइड का एरो कंसीडर करके पूरा मेजरमेंट ढूंढोगे तो भी चलेगा. इसका ढूंढो जो भी आता है यहाँ तक का. Ma'am, 60. फिर इसे क्रॉस करो, इसे क्रॉस करो, तो ये आपका ये जो आया वही ये आना चाहिए. Ma'am, 60. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Full 60. फुल 60 आया हो तो दोनों 30-30 आने चाहिए कि नहीं? दोनों 30-30 आने चाहिए. तो ये मेजरमेंट आपका 30 डिग्री आना चाहिए एंड ये मेजरमेंट भी 30 डिग्री आना चाहिए. Got it? तो अभी हम यहाँ पे डी लिखते हैं, शायद समझो. आपके टेक्स्ट में कुछ नाम दिया है या डी ही दिया डी. यहाँ पे कहाँ पे ये डी वाला, यहाँ पे डी. तो we can write it down that measure angle CAB is equal to measure angle DAB is equal to 30 degree. ओके. उससे पहले आप ये भी लिख सकते हो, इसके आगे की लाइन में लिखो मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू कितना लिया आपने. सपोज आपका जो भी मेजरमेंट लिया है वो लिखना है. ये मैं 60 और 30 लिख रही हूँ, आपने 90 लिया है तो यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा. किसी ने 70 लिया है तो यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा. गॉट इट? बट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो ओरिजिनल एंगल का जो मेजरमेंट था उससे जो दो पार्ट हमने बनाए वो एग्जैक्टली हाफ मेजरमेंट आया. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो इट इज अ बाइसेक्टर. ये जो आर्म बना AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB. और यहाँ पे कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है. कल हम लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ढूंढते थे, वहां पे हमने क्या किया था, इसे सेंटर बनाया, इतनी रेडियस ली, आर्क बनाया. इसे सेंटर बनाया, इतनी रेडियस ली, आर्क बनाया और हमने ज्वाइन कर दिया. यही था. ठीक है. सेम यहाँ पे क्या करना है, तो एक आर्क बनाना है, इसे सेंटर लेना है, इतनी रेडियस बना के आर्क ड्रॉ करना. इसे सेंटर बना के विद द सेम रेडियस दूसरा आर्क ड्रॉ करना एंड जॉइन इट विद द ओरिजिन. सिंपल है. बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो लॉजिक रिमेन सेम. यहाँ लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे एंगल. बट एंगल में आपको ये याद रखना है कि एक रैंडम आर्क आपको ड्रॉ करना, and then using those intersection point you can find out the bisectors. यहाँ पे मैंने m लिखा. m एंगल की सिंबल के पहले it shows that measure angle. जब हम मेजरमेंट लिखते हैं तब आपको आगे m ज्वाइन करना जरूरी है. मेजर एंगल CAB is equal to CAB गलत है, सबने लिख लिया. CAD आएगा यहाँ. CAB 30 है एंड DAB 30 है. CAB तो कितना है, 60 है. मानी ओरिजिनल वो भी लिख दो एट द बॉटम. हो गया. चलो. नाउ द इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग 60 डिग्री एंगल. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, राइट ऑन द हेडिंग. थोड़ा जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास. कंस्ट्रक्टिंग 60 डिग्री एंगल, ऐसा लिखो सब. टेक का रे, रैंडम रे ले लो एक. वेरी इजी है, लेकिन ये फंडामेंटल है. अगर ये कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया तो आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं. एंगल ऑलवेज डिग्री के साथ ही लिखा जाता है.
ये डिग्री सिंबल मस्ट बी दैट। चलो पहले एक रैंडम लाइन ले लो। लाइन भी बोल सकते हो, अगर लाइन लेते हो तो उसको दोनों साइड पे एरो दिखाना है L, उसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लो P। इतना हो जाए, देन पुट द कंपास इन योर हैंड। एक रैंडम पॉइंट ले लो P, ले लिया? एक रैंडम रेडियस, एक रैंडम रेडियस लो जिसे बोलो Q, और ये रेडियस से ड्रॉ करो ना। रैंडम रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करो। Then with the same radius, center P लो। P से तो ये बनाया आपने, अभी Q से बनाना है। सेंटर Q लो और P से ड्रॉ करो। ऐसे फिगर आएगा आई। देन ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया उसे P के साथ ज्वाइन कर दो। राइट डाउन इट R। इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बनाना है? R। Then measure using your protractor. The angle must be of 60 degree. यहाँ पे आपका 60 डिग्री आना है। अगर आपने एग्जैक्ट रेडियस लेके किया है तो इट इज 60 डिग्री। You can write over here measure angle RPQ, or we can say that measure angle QPR is equal to 60 degree. So I repeat the construction. What we had done? First we had taken one line and a point on it. Then we had taken a random radius. With the center of that point, we had drawn one arc. And with the same radius, we had drawn another arc with the center Q. And at the intersection point, we join it with the origin. Simple है? ये याद रखना, क्योंकि इसके बेस पर 0 to 180 डिग्री के कोई भी एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया? अब यहाँ पे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, वहाँ पे उन्होंने दिया है कि कंस्ट्रक्टिंग अ 30 डिग्री एंगल। तो हम सेकंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। कौन बताएगा कैसे ड्रॉ करेंगे हम? सबसे पहले एक लाइन होगी है, फिर रैंडम में 30 डिग्री कैसे मिलेगा? 60 को बाइसेक्ट कर। बाइसेक्टर अभी हम करके आए। 60 डिग्री हमने अभी ड्रॉ किया। चलो करो 60 डिग्री ड्रॉ करो, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ। मैं नहीं बोलने वाली कुछ भी। 30 डिग्री ड्रॉ करो। After a few minutes, I'll show you how the figure will come. 60 डिग्री अभी हमने किया, उसको करो, फिर उसका बाइसेक्टर ढूंढो। प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ नहीं कर लेना, रूलर एंड कंपास से करना है। यूज रूलर एंड कंपास टू कंस्ट्रक्ट these angles. तो 60 डिग्री तो यहाँ तक आ गया आपका। मिला सबको 60 डिग्री। नाउ हाउ टू ड्रॉ बाइसेक्टर? आप कैसे करोगे? आर्क बनाने हैं। कैसे? पुट शार्पनेज ऑन
on this point, extend it until this intersection point and make an arc here. Okay, with the same radius, put the sharpen edge on arc and make an arc in this direction. And then join it. फिर इसे आप ज्वाइन करोगे इस तरह से तो आपको एग्जैक्टली इसका बाइसेक्टर 30 डिग्री मिलेगा। तो ये जो हो गया ना, ये मेजरमेंट दैट इज ऑफ 30 डिग्री, ये मेजरमेंट दैट इज ऑफ मैम 30 डिग्री आ गया। 30 डिग्री। बाइसेक्ट बनाना आया सबको? यस ओके फाइन। मैम इसलिए 30 यस मैम हाउ टू मेजर, ये ओ बता दो। यहाँ पे मेजर कैसे करोगे 30 डिग्री? तो पहले आप यहाँ पे सेंटर रखो, ये 0 से चेक करो कि ये एरो 30 डिग्री पे आना चाहिए। चलो चेक करो सब, दिस एरो मस्ट बी एट 30 डिग्री। देन टर्न योर प्रोट्रैक्टर, यहाँ पे टर्न करो इस तरह से, यहाँ पे 0 एडजस्ट करो और ये मेजर करो, इट मस्ट बी 30 डिग्री। यस मैम तो दोनों 30 डिग्री आए हो और सेम नाम दिए हो आपने RPQO। तो क्या लिखेंगे हम? मेजर एंगल RPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर एंगल RPO इज इक्वल टू मेजर एंगल OPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री and ray PO is a bisector of एंगल कौन सा है? RP। कंप्लीटेड मैम समझ में आया ये मैंने क्या लिखा? यस मेजर एंगल RPQ मानिए RPQ बेसिकली इट इज ऑफ 60 डिग्री। वहां पे हमने क्या किया? बाइसेक्टर बनाया। कौन सा? तो ये रे PO is a bisector of it and due to that RPO and OPQ are of 30 degree. कंप्लीटेड मैम समझ आ गया सबको? यस मैम Do practice of these constructions at home yourself. ठीक है? मैम ऐसे तो